আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। मंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी ने ली है और इसी के साथ सूबे की कमान उन्होंने संभाल ली है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को आपने बांग्ला भाषा में शपथ लेते हुए सुना। इसके बाद 5 अन्य विधायक भी अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एक नया इतिहास रचा जा चुका है बंगाल के इतिहास में। इतिहास तो पहले ही रचा गया था प्रचंड बीजेपी की जीत के बाद, लेकिन अब जब औपचारिक तौर पर यह शपथ ग्रहण हो चुका है, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, शपथ उन्होंने ले ली है कोलकाता के इस ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। और शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं झुककर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा गमछा अपना उन्हें पहना दिया है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाई और एक-एक करके सबसे मुलाकात करते हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा जिक्र आप भी कर रहे थे राकेश थोड़ी देर पहले कि दोनों की वेशभूषा बहुत सिमिलर है आज, और अपना भगवा जो गमछा था उन्होंने उनके गले में डाल दिया। नहीं, और दोनों इसलिए भी ये जरूरी कि अगर मुखर तौर पर कोई हिंदुत्व को सियासत के लिए इस्तेमाल करता है या उसके आधार पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाता है, तो उसमें सीएम योगी और शुभेंदु अधिकारी दोनों का नाम आता है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, द ऑर्डर ऑफ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimatra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব
আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के पुराने और बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दिलीप घोष खड़गपुर सदर से चुनाव जीते हैं। 2021 में प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, 2019 में मेदिनीपुर से लोकसभा सांसद बने, 2016 में खड़गपुर सदर सीट से एमएलए बने और 2014 में आरएसएस से बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब जब नई सरकार बनी है तो नई सरकार में मंत्री हैं और इनके कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी में एक बड़ा नाम और इसीलिए देखिए शुभेंदु अधिकारी के बाद अगर किसी ने सबसे पहले शपथ ली है तो वो दिलीप घोष का नाम आया और ये उनके कद को दिखाता है और संभवतः आने वाली सरकार में नंबर 2 की यानी जो नई सरकार है उसमें नंबर 2 का कद भी इनका ही देखने को मिल सकता है। दिलीप घोष हिमंत बिश्व शर्मा भी नजर आ रहा है। केश 12 तारीख को वहां पर भी वो भी इसी माहौल में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आने वाले हैं और ये पूरा कुनबा वहां भी नजर आएगा। नाउ रिक्वेस्ट श्रीमती अग्निमित्रा पॉल, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. One by one. This is first. This is second. আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और श्वेता
पहले ये ग्लैमर इंडस्ट्री में थी, फैशन डिजाइनर रही थी और अभी भी इनका जो ब्रांड है उसके कई स्टोर्स जो है आपको वो अलग अलग शहरों में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब ये पश्चिम बंगाल में मंत्री के तौर पर कार्य करेंगी और पश्चिम बंगाल किस तरीके से बदलाव का गवाह बने, साक्षी बने, इसके लिए वो शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर काम करेंगी। तो ये इनकी जर्नी, हालांकि कई सारे सितारे रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्मों के लिए भी इन्होंने कपड़े डिजाइन किए हैं जब ये फैशन डिजाइनर के रोल में हुआ करती थी। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती मंच पर हैं तो इसलिए ये बात ध्यान में आ गई। लेकिन अग्निमित्रा पॉल शपथ ले चुकी हैं और उसके बाद जो औपचारिक प्रक्रिया होती है, हस्ताक्षर जो करते हैं नेता शपथ लेने के बाद, वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अग्निमित्रा पॉल अपनी बेबाक बयानबाजी और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के मुद्दों को प्रखरता से उठाने के लिए जानी जाती हैं। राजनीति और कला, क्योंकि पश्चिम बंगाल का कला से एक बहुत गहरा जुड़ाव रहता है। ये जो कॉम्बिनेशन है उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। ऑनरेबल मिनिस्टर डेजिग्नेट टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। अशोक कीर्तनिया मतुआ समुदाय और बनगांव क्षेत्र के मुद्दे से जुड़े रहे हैं। आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मतुआ समुदाय के लिए काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, उनके विकास के लिए। मतुआ समुदाय, इनका उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव है और अशोक कीर्तनिया उन नेताओं में से एक हैं जो मतुआ समुदाय के लिए सीएए को लागू करने की पुरजोर वकालत करते आए हैं और साथ ही वो बनगांव क्षेत्र की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको भी पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। तो अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और 2021 में ये पहली बार विधायक बने थे। टीएमसी के श्यामल रॉय को इन्होंने हराया था और इस बार भी जो इन्होंने जीत हासिल की है, करीब 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है और ख़ासतौर पर मतुआ समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए भी उनके नाम का चयन हुआ, जिसका जिक्र श्वेता कर रही थी कि बार बार चुनावी मंचों से इस बात का जिक्र हुआ था कि मतुआ समुदाय को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना है, तो उस वादे पर भी आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अंग कलिंग बंग सब जगह भारतीय जनता पार्टी अब शासन में है। May I now request Shri Khudiram Tudu, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor.
ing ᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ बेगौर तरफ सिने दुलड़ से हाला हता बांग मने कतेर ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मना बताओ कतेर समझोस तीन कमियां इन चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ। जोहार। पद ग्रहण हुआ है खुदीराम टुडू का। बड़ी जीत इन्होंने हासिल की। जो चुनाव अभी बीते करीब 52,000 से भी ज्यादा वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। बांकुड़ा जिले से आते हैं, रानीबाद इनकी सीट है और खास तौर पर इसलिए भी चर्चा क्योंकि ये आदिवासी समुदाय से आते हैं। जंगल महल इलाके में आदिवासियों के अधिकारों के लिए काफी मुखरता से इन्होंने आवाज उठाई है और खास तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय बाजार में जमीन पर बैठकर सब्जी बेचने की इनकी तस्वीर सामने आई थी तराजू से तौलते हुए। उस तस्वीर ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, सादगी की ओर ध्यान आकर्षित किया था। अब ये पश्चिम बंगाल में नई सरकार जो शुभेंदु सरकार है उस कैबिनेट का हिस्सा बन चुकी है। श्री निशित प्रामाणिक Honorable Minister Designate to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। की शपथ ले ली है और ये
पांचवा चेहरा जिन्होंने आज शपथ ली है। केंद्र सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं, अब पश्चिम बंगाल कैबिनेट का हिस्सा होंगे। राजवंशी समुदाय के एक प्रभावशाली नेता के तौर पर इनको देखा जाता है। हालांकि पहले ये भी टीएमसी का हिस्सा थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर केंद्र में इनको जिम्मेदारी मिली और बड़ी उपलब्धियां रही कि सबसे कम उम्र के ये केंद्रीय मंत्री बने थे 2021 में, जब गृह राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो इनके पास था। और अब पश्चिम बंगाल में जब सरकार बीजेपी की बन गई है तो उस कैबिनेट का अब हिस्सा बन चुके हैं। राजवंशी समुदाय पश्चिम बंगाल में काफी महत्वपूर्ण है, जिसे वहां पर एससी का दर्जा है। और आप ये देखिए कि जो पिछड़ों का वोट भर भर कर मिला है भारतीय जनता पार्टी को, एससी और एसटी समुदाय का करीब 84 सीटें हैं आरक्षित वर्ग की। पश्चिम बंगाल के चुनावी जो सीट्स हैं 294 में से, उन 84 में से 67 सीटें आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत dignitaries for their gracious presence देश की सियासत में दूसरे राज्यों तक भी पहुंचे। and with the